So good morning students. Today we are going to learn 9th chapter, the freedom movement of 1857 CE. So what we have learnt in history, that how Britishers entered in India. Yes, and what else we have learnt about him, that Britishers, they started East India Company to make profit from India. Yes or no? And many farmers also got burden from these Britishers by paying taxes, by selling their jewelries. Got it? Because annual payment में क्या बोला था कि उनको कुछ ना कुछ आपको एनुअल पेमेंट में पे करना ही है, वेदर आपका एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है. So many people, not only farmers, but many people suffered a lot with the Britishers' policies. We have learned policies also. Which policies we have learned? The subsidiary alliance we have learned, annexation policy, how they captured the Indian territories. How they captured the Indian territories by their suppressive policies. By their critical policies, they have entered to India. Yes, and they made a friendship with all the princely states. Got it? Starting तो उनको लगा कि ये हमारे friends हैं. You all know. By this subsidiary alliance, they thought कि they are my friends. फिर आपके बाद उसके बाद we have learned that how they just controlled the princely states also. कि भाई आप हमारी परमिशन के बगैर हमारी आर्मी यूज नहीं कर सकते हो. Because all kings used to fight with each other. हमारे देश में यूनाइटेड कहाँ था? यूनिटी कहाँ थी? Because before independence our states were called as a princely states. All states used to fight with each other to just capture the territories, to expand their rule. Too many these advantages taken by Britishers. तो ये advantage किसने लिया? Britishers ने लिया. And they just started trading purpose से आए थे, but started ruling in our country. Got it? So for that purpose only I just explained कि why, how the Britishers entered in India. And the freedom movement of 1857. उसके बाद हमारे देश ने एक रिवॉल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. So that thing is called as a freedom movement of 1857 CE. तो 1857 CE में उन्होंने एक फ्रीडम मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया हमारे इंडियंस के लोगों ने. So in that details we are going to learn in this chapter कि ये रिवॉल्ट क्यों स्टार्ट किया, क्या पर्पस था ये रिवॉल्ट करने का, and which year it occurred? It occurred in the year 1857. Got it? तो हम ये रिवॉल्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशंस गैदर करेंगे by learning. Nationalism emerged in India due to not only the arrival of the European but also their behavior and policies. Nationalism मतलब देश के प्रति प्यार लोगों को जागा दिल में. They created nationalism for their nation's love. लोगों के अंदर क्रिएट की हुआ. नॉट ओनली दैट ब्रिटिशर्स ने उनका जो क्या बोलते हैं उनका फ्रीडम ले लिया था हमारे पीपल्स का, इंडिया का. नॉट ओनली दैट बट जो उनकी जो सप्रेसिव पॉलिसीज थी ना, मतलब हमारे लोगों को तो वो गिनती नहीं करते थे. यस और नो? हमारा ही देश भाई हमको ही गुलाम कर दिया और हमारा ही कुछ फ्रीडम नहीं यहाँ पर. सो दैट थिंग्स यूरोपियन बट ऑल्सो दैट बिहेवियर एंड पॉलिसीज. तो नेशनलिज्म मतलब लोगों ने सोचा कि भाई हमें तो एक इकट्ठा रहकर हमें देश में रहना पड़ेगा, तभी हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इंडिया से. ओके? तो उनका जो पॉलिसीज था, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसके लिए नेशनलिज्म क्रिएटेड इन आवर कंट्री. अंडरस्टूड? लव फॉर नेशन. An important event happened in India in the year 1857 CE, which became the first in the factors responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country. An important event happened in India. एक हमारे कंट्री में कितना important event हुआ in the year 1857 के लोग एक बैटल शुरू किया उन्होंने against Britishers. That just consolidated the sentiment. लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स था, जो गुस्सा था, जो
बहुत क्या बोलते हैं एंगर था थ्रू द ब्रिटिशर्स, तो वो एक स्ट्रेंथ होने लगा, लोग स्ट्रेंथ में आ गए. दे मेड देयर एफर्ट्स टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स. अंडरस्टूड? Yes, so that was the reason why they just started this battle in the year 1857. उसे हम क्या बोलेंगे? The freedom movement. एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, उसे हम बोलेंगे फ्रीडम मूवमेंट. Now what are the reasons for the outbreak of the revolt of 1857? There are many reasons. हम one by one एक क्लासिफाइड के हिसाब से हम पढ़ेंगे. What were the main reasons that it started, broke out 1857 revolutions movement? ये स्टार्ट क्यों किया गया मूवमेंट? तो लेट्स अंडरस्टैंड. The main reasons for the revolt of 1857 CE was widespread dissatisfaction among the people in India due to suppressive policies of the British adopted to spread their empire in India. Main reasons क्या था? ये reasons यहाँ 1857 में revolt करने का reason ये था कि widespread dissatisfaction, लोग को dissatisfaction था ब्रिटिशर्स से. People were not happy with the Britishers. Got it? एक तो उनकी जो चालाक करके इंडिया में एंटर होना, तो peoples were not satisfied with the Britishers and due to their suppressive policies, मतलब कोई खराब पॉलिसीज. ये जो पॉलिसीज उन्होंने स्टार्ट की थी, अनेक्सेशन पॉलिसी, कोई भी राजा मर गया उसका बेटा नहीं तो वो जगह खुद कंट्रोल में कर लेते थे. दीज वर गुड, ये कोई अच्छी बात थी. सो देयर वर मेनी सप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एडॉप्टेड टू स्प्रेड देयर एम्पायर इन इंडिया. और वो क्या चाहते थे? अपनी पॉलिसी स्प्रेड करके इंडिया में अपना रूल स्टार्ट करना चाहते थे. भाई हम क्यों अपने दूसरे कंट्री वाले लोगों को अपना एम्पायर बनाएं? इज इट राइट? नो. तो यहाँ पर पीपल्स भी, ये भी एक रीजन था कि लोग खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ देयर बैड पॉलिसीज. अंडरस्टूड? लेट अस रिव्यू द रीजंस इन डिटेल अबाउट व्हाट लेड टू दिस डिससैटिस्फैक्शन. तो आई नो कि एवरीबडी नो कि व्हाई पीपल्स वर dissatisfied with the Britishers. Yes? Now first reason is social and religious reason. अब सोसाइटी के जो भी मान्यता है या जो भी धर्म का रीजंस है, तो फर्स्ट रीजन वो है the policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. लोगों को डाउट होने लगा क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स, मतलब बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारे अलग अलग पॉलिसी उन्होंने इन्वेंट किया इंडिया में. यस, here the company made people, company means East India Company. So whatever the social reforms they started, people को डाउट होने लगा भाई ये कहीं हमको क्योंकि हमारा देश हिंदू रिलीजियस को फॉलो करने वाला था. So they thought कि might be these Britishers will convert our Hindu religious to Christianity. तो लोगों को, क्योंकि पुराने जमाने में हम लोग अपने धर्म को ज़्यादा मानते थे. यस, हम लोग क्या बोलते हैं, हमको ज़्यादा ऐसा क्या बोलते हैं, दिमाग में आता था कि कई लोग हमारे जो रिलीजन्स को कन्वर्ट नहीं कर दें. तो पीपल गॉट दैट सस्पिशियस, डाउट होने लगा लोगों को. They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religions forever. तो यहाँ पर लोगों को और डर होने लगा क्योंकि वो नए नए सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में कर रहे थे, बहुत सारे चेंजेस ला रहे थे. गॉट इट? तो यहाँ पर लोगों को लगा कि भाई हमारा जो हिंदू रिलीजियस, हमारा जो कल्चर कितना पुराना, हजारों साल पहले का हमारा जो इंडियन कल्चर्स है, कहीं वो स्पॉइल नहीं हो जाए. Yes, and how it will spoil? They thought कि ब्रिटिशर्स क्या पता हमको हिंदुइज्म से सब लोगों को किस में कन्वर्ट कर देगा, क्रिश्चियनिटी में, और हमारा देश नहीं रह जाएगा हिंदू रिलीजियस स्टेट इंडिया. गॉट इट? क्योंकि हम हमारे देश के लोग अपने रिलीजियस को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे उस समय. यस, people believe that the Indian social system was deliberately undermined in the railways, jails and military. तो यहाँ पर पीपल को बिलीव होने लगा कि इंडियन जो सोशल सिस्टम है वो पूरा अंडरमाइन, मतलब डेलीबरेटली टोटली जो भी जितने भी काम है उसमें, रेलवेज में,
जेल्स में, मिलिट्री में, तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट कर देंगे. ओके. A larger sections of our society was orthodox at that time, and thus new changes aroused dissatisfaction in them. So those period our country, हमारे जो देश के लोग थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत एक पुरानी रीति रिवाज को समझते थे. ऑर्थोडॉक्स मतलब जो कट्टर अपने धर्म को मानने का काम करना. सो उनको तो डिससेटिस्फैक्शन होगा ही. यस, क्योंकि पुराने जमाने में तो भाई अपने बहुत रीति रिवाज थे, अपने धर्म को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे. सो दोस पीपल ऑल्सो थॉट दैट मे बी चेंज होगा. तो यहाँ पर भी एक लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन मतलब नफरत होने लगी ब्रिटिशर्स से. As a result, many people joined this freedom movement to sustain their social religious structure. The result क्या हुआ? People dissatisfied and all these people also joined this movement. बोला कि चलो हम भी ज्वाइंट होंगे इस मूवमेंट पे, आपके साथ में फाइट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. सो दिस रीजन यू अंडरस्टूड. सोशल रिलीजियस, वो नहीं चाहते थे कि उनका धर्म चेंज हो जाए. एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टू fight against the Britishers in the freedom movement. Yes. Now second reason, economic reason. Economics मतलब पैसे का. Understood? यहाँ पर जो prosperous होना था पैसे का. The aim of the British was to bring prosperity to England at the cost of India. तो main aim Britishers का क्या था? लालच, greediness आ गया था कि भाई यहाँ पर तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके, जितना पैसा हम कमा सके हमारे इंग्लैंड के लिए. तो दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट. वो कोशिश कर रहे थे कि जितना से ज़्यादा हम इंडियन के जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वही के कमोडिटीज़ को सेलिंग करके, एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले बन जाए. As a result, most of the sections of Indian society became impoverished. Impoverished मतलब become poor. वो लोग पैसे वाले बनते गए. They become rich, and our peoples of our country become impoverished. Impoverished means become poorer. तो यहाँ पर कौन गरीब होता गया? हमारे देश के ट्रेडर्स जो बिजनेस कर रहे थे, उनका बिजनेस प्रॉस्परस हो रहा था ब्रिटिशर्स का. और हमारा जो इंडियंस कमोडिटीज बेचारे टैक्स पे करके, खर्चा करके सब करते थे, क्योंकि वो मेन तो टैक्स पे नहीं करते थे. मेन तो वो टैक्स किसी चीज में पे नहीं करे. तो ये एक उनका बेनिफिट रहा पहले से. एंड दे वर अर्निंग मोर एंड मोर मनी. यहाँ पर क्या हुआ? हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो बेचारे टैक्स पे करके, खर्चा करके उनका हाई कॉस्ट हो जाता था, तो उनके पास कोई खरीदने वाला नहीं था. एंड दे बिकम पुअरर. हमारा देश के लोग ही पुअर हो गए. द लैंडलॉर्ड्स एंड पीसेंट्स, फार्मर्स, हैविंग लॉस्ट देयर लैंड्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्टर. जो लॉस्ट जिनकी जो लैंड थी वो भी ब्रिटिशर्स ने ले ली अपने हाथ में. एंड दोज पीसेंट्स हु बिकम पुअरर, दे आल्सो join revolt with the people of India. Understood? Now next reason is political reason. Let's understand what is this political reason. The East India Company acquired the Diwani rights. Diwani rights means right to collect revenue as a result of their victory in the Battle of Buxar in 1764 CE. So we all have learnt about the Battle of Buxar. That was a turning point in our history. कि यहाँ पर वो जीत गए बैटल ऑफ बुक्सर में. एंड दे अक्वायर्ड मतलब यहाँ पर उनको मिला दीवानी राइट्स. मीन्स दे गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. तो ये भी कि इनका इनकम सोर्स हो गया यहाँ पर. यस और नो? धीरे धीरे आए तो ट्रेडिंग करने, बट भाई सब रूल करने लग गए. एंड दे अक्वायर्ड मोर मनी फ्रॉम इंडिया. और पैसा भी इंडिया से कमाते रहे. Understood? तो ईस्ट इंडिया कंपनी रिजल्ट ऑफ देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बुक्सर इन 1764 सी. तो यहाँ पर ये जीत गए थे, उसके बाद उनको ये दीवानी राइट्स का हक मिला. सो दे कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम द फार्मर्स. दिस वाज फॉलोड बाय एन aggressive policy of expansions with the help of subsidiary lines
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन एंड मियर डिप्लोमेसी। दिस फॉलोड मतलब एक तो बैटल ऑफ बुक्सर में जीत गए, दीवानी राइट्स भी हासिल कर दिया, देन दे स्टार्टेड द वेरी क्रिटिकल पॉलिसी दैट इज एक्सपेंशन, मतलब धीरे धीरे पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने लगे विद द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। एज आई टोल्ड यू, सब्सिडियरी अलायंस जो भी राजा एक्सेप्ट करेगा तो राजा किसके गुलाम हो जाएंगे? ब्रिटिशर्स के। वॉट एवर द ब्रिटिशर्स विल से दैट थिंग वो राजा करना पड़ेगा। एज यू ऑल नो अबाउट सब्सिडियरी अलायंस, यस, इवन उनकी जो आर्मी होती थी इंडिया में ब्रिटिशर्स की, उनके पालने का खर्चा काम भी कौन करता था? राजा, जिसने भी सब्सिडियरी अलायंस लिया है। ओके, तो वो फ्री में रहते थे, उनकी आर्मीज, खर्चा वगैरह कौन करते थे? राजा, जिसने भी एक्सेप्ट किया सब्सिडियरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, छीन लेना वो जगह, अगर कोई नहीं है, उनके पेरेंट्स या कोई भी क्या बोलते हैं, बेटा अगर राजगद्दी में नहीं बैठ रहे हैं तो वो भी अनेक्सेशन करके जगह छीन लेने का, कि भाई यहाँ पर तो कोई रूलिंग करने वाला नहीं है, तो वो भी एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया। एंड मियर डिप्लोमेसी, उनका जो क्रिटिकल डिप्लोमेटिक क्या बोलते थिंकिंग से। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार, who were among the few of the victims of these policies। तो ये जो अनेक्सेशन पॉलिसी है, तो रानी लक्ष्मीबाई की भी जगह उन्होंने छीन ली थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई ओन सन नहीं था, एडॉप्टेड सन था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि एडॉप्टेड सन कभी भी राजगद्दी में नहीं बैठ सकता है, तो ऐसा करके उनकी जो झांसी की जगह भी रानी लक्ष्मीबाई की किसने छीन ली? ब्रिटिशर्स ने। ओके, और जो बिहार राजा कुंवर सिंह, तो वो भी उनकी जगह ले ली। And who were among the few of the victims of these policies joined the revolt to regain their territories। तो रानी लक्ष्मीबाई है, ये कुंवर सिंह है, उन्होंने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट लिया। रीजन क्या था? कि हमारी जगह वापस हमें रीगेन लेने का है। जो ब्रिटिशर्स ने हमारे पास से ले ली ना, वो जगह को अगेन वी विल कैप्चर बाय दिस रिवॉल्ट। अंडरस्टूड? तो सब यहाँ पर कोई ना कोई रीजन था, वेरियस रीजन वी हैव लर्न कि why they participated in this revolt। Landlords and peasants who had lost their lands to join the revolt, जिन्होंने अपनी लैंड खो दी है, फार्मर्स जो जगह उनकी खो दी है, तो वो पाने के लिए भी उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। यस, टू कैप्चर, टू रीगेन अगेन दोज प्लेस। नाउ मिलिट्री रीजंस, द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वाज वेरी लेस in a vast country like India। The number of British officers and soldiers was very less in a vast country like India। The ratio of the Indian soldiers to the British soldiers was approximately 6:1 in the military। जो number of British officers and soldiers was very less in country like India। ब्रिटिश तो रूल तो करना स्टार्ट कर दिए थे, बट उनकी जो सोल्जर्स वगैरह थी ना, उनका परसेंटेज बहुत कम था हमारे देश में। यस, द रेशियो ऑफ द इंडियन सोल्जर्स टू द ब्रिटिश सोल्जर्स वाज अप्रोक्सीमेटली 6:1 इन द मिलिट्री। मिलिट्री में 6 इंडियन सोल्जर्स थे और एक खाली ब्रिटिशर्स के। तो आप सोचो, हमारे इंडियन सोल्जर्स उनके गुलाम बनके उनके लिए काम कर रहे थे। अगर उनका ब्रिटिश आर्मी है तो उनके जो सोल्जर्स होने चाहिए वो परसेंटेज ज्यादा होने चाहिए या नहीं? यस, but ये 6:1। The higher post in the military were reserved for the British। जो हाई पोस्ट होती है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया, और जो लल्लू पंजू का काम है, जो छोटे मोटे काम है, उसको किसको रिजर्व कर दिया? इंडियंस पीपल। तो इनकम भी इतनी नहीं आ रही थी उनको, हाई पोस्ट में लगा दिया ब्रिटिशर्स के लोगों को। सी द चालाकी कैसे करते थे वो हमारे देश में। The opportunity of promotion was very limited for the Indian soldiers। जो प्रमोशन होना था, प्रमोशंस मतलब पता है ना आपको, एक पोस्ट से हाई पोस्ट पे प्रमोशंस होना, वो प्रमोशंस का काम भी ब्रिटिशर्स को ही देते थे। प्रमोशंस भी किसका होता था जॉब में? ब्रिटिशर्स का, नॉट इंडियंस पीपल। तो हर चीज में उनको ही प्रमोट करते थे, उनकी हाई सैलरी थी। There was a big difference between the salary of an Indian soldier and a British soldier। तो यहाँ पर भी ये लोग क्या बोलते हैं, सैलरी में भी
गड़बड़ करते थे कि हाई सैलरी ब्रिटिशर्स को देते थे पीपल को, और हमारे देश के लोगों को लो सैलरी, काम ज़्यादा कराने का बट पैसा कम देने का। द इंडियन फुट सोल्जर received 7 rupees while the British soldier received 150 rupees per month। तो आप ही देख लीजिए 7 rupees और 150 rupees में कितना डिफरेंस है। सेम सोल्जर एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स को कितना पैसा मिलता था मंथली 7 rupees एंड ब्रिटिश सोल्जर्स यूज्ड टू गेट 150 rupees। तो कितना डिफरेंस करते थे, कितना ये लोग करते थे। अंडरस्टूड? The British soldiers considered the Indian soldiers to be low and insignificant। उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उनको लो कैटेगरी का समझते थे। उनका बिहेवियर भी ऐसा था कि उनको कुछ मान सम्मान नहीं देते थे। Understood? They are thinking that they are smart and all the Indian soldiers who are working in our group, they are not important। and लो कैटेगरी समझकर उसको उनका ट्रीट करते थे। As per the religious restrictions, the Indian soldiers were not allowed to cross the sea or else a person would be treated as an outcast। तो पहले के ज़माने में स्टूडेंट्स क्या होता है पता है, जो भी आप एरिया में रह रहे हो, अगर उस एरिया से अगर सी क्रॉस करके आप बाहर चले जाओ, पहले के ज़माने की बात कर रही, इट मीन्स आप पर्टिकुलर इस एरिया में आपको एक्चुअली अलाउड नहीं था कि आप अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर रहने लग जाओ। ऐसे पहले मान्यता थी इन ओल्डन टाइम्स। अगर आप चले गए तो आप आउटकास्ट के पीपल हो गए, आप उस पर्टिकुलर कास्ट के पीपल नहीं रहोगे अगर आप सी क्रॉस करके गए, तो ऐसा पहले था। वुड बी ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट। Despite this custom, the Indian soldiers were compelled to cross the sea in order to fight battles for the British। तो और ब्रिटिशर्स यहाँ पर कंपल्स मतलब कंपल करते थे, फोर्स करते थे ऐसे लोगों को, सोल्जर्स को, कि भाई आपको सी क्रॉस करना पड़ेगा और आपको फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो देखो हमारे इंडियंस पीपल ने उनके लिए सी क्रॉस करके भी चले गए। अंडरस्टूड? जो उनके रूल में नहीं था, जो हमारे देश के रूल में नहीं था, पहले ओल्ड ऐसा थिंकिंग था लोगों का कि आप सी क्रॉस करोगे तो आप अदर कास्ट के हो जाओगे, आप यहाँ के कास्ट के। देन टू दे यूज्ड टू फाइट फॉर द ब्रिटिशर्स एंड क्रॉस द सी। यस, thus like other Indians, the soldiers too felt that their religion was at stake, रिस्क में है। तो ऑर्थोडॉक्स पीपल तो सोच ही रहे थे कि उनका रिलीजियस रिस्क में है। तो यहाँ पर सोल्जर्स जो सी क्रॉस करके उनको भेजा जाता था अलग जगह में फाइट करने के लिए, तो उनको भी ऐसा मन में फील आ गया कि माइट भी ये हमारे कास्ट से दूर करना चाहते हैं हमें, एंड वी आर एट रिस्क। स्टैक मीन्स वी आर इन रिस्क। The soldiers, being a part of the Indian society, shared the same sentiments of grief, suspicion and anger as other did। The soldiers, not only the people of our country, not only the orthodox people, even soldiers को भी लगा, गुस्सा आने लगा। They also had a doubt, they also have shared the same sentiments, मतलब sentiments of grief मतलब गुस्सा, sorrow, दुख होने लगा उनको भी। Yes, suspicious, doubt and anger as others did। अब उनको भी गुस्सा आने लगा, and they also joined with the revolutions movement, freedom movement में फिर उन्होंने participate किया। Now the immediate reasons, let's understand। There were various reasons for the rising anger and discontentment among the people towards the British rule। There were so many reasons। Anger क्यों होने लगा, लोग क्यों उनसे नफरत करने लगे, क्यों इनके ऊपर इतना ऊपर तक गुस्सा आ गया कि वो लोग फाइट करना भी शुरू कर दिया उनके लिए। So there were many reasons we have learned। So now discontentment among the people towards the British rule। In January 1857, अब ये फाइनल गुस्सा था कि अब उनको फाइट करना ही था, फ्रीडम मूवमेंट। इन जनवरी 1857 एक न्यू राइफल इन्वेंट किया गया, दैट वाज कॉल्ड एज एनफील्ड राइफल, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया,
the cartridge of this rifle had to be beaten off before being used. तो पहले उसको क्या, कार्ट्रिज को यूज, राइफल को बीटन ऑफ मतलब उसको रिमूव करके कुछ ग्रीस करने का काम था. This cartridge was greased with the fat of cow and pig. और ये ग्रीस किससे किया जाता था? Fat of cow and pig. For the Hindus the beef and for the Muslims the pork was prohibited by their religion. हम हमारे जो हिंदू रिलीजियस हैं, हम गाय को भगवान मानते हैं. Yes or no? तो यहाँ पर गाय को मारकर उनका जो क्या बोलते हैं, ये बीफ, उनका जो मांस है, वो बोले कि सोल्जर्स वहाँ पर बीस उनके मांस से उसको ग्रीस करेंगे कार्ट्रिज को. तो ये कोई सहन करेगा? और मुस्लिम्स के लिए इनका जो क्या बोलते हैं, पॉर्क, जो पिग का मांस भी एक उनका धर्म है कि वो लोग इनको मानते हैं. Hence they felt that the British were deliberately trying to desanctify their religion. Desanctify मतलब वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 100% उनका रिलीजियन, या अपने रिलीजियस से नफरत कराने का काम ब्रिटिशर्स कर रहे हैं. क्योंकि हम गाय को भगवान की तरह मानते हैं, तो हम कैसे ये पाप कर सकते हैं? यस, तो पीपल थॉट कि रियली दे आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट आवर रिलीजियंस टू क्रिश्चियनिटी. द रिस्पॉन्स टू देयर complaints in the same regards was not satisfactory. Hence the 18th battalion, उन्होंने कंप्लेन की कि भाई आप ऐसे कैसे हमको करा सकते. सोल्जर्स ने कंप्लेन की क्योंकि हम तो काऊ और पिग, मुस्लिम्स के लिए पिग और हमारे लिए काऊ एक भगवान की तरह उसको पूछते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे. कंप्लेन किया, बट nobody was listening. Hence the 18th battalion of Barakpur was the first to refuse the use of the cartridge. तो 18 battalions का जो बैरकपुर का ग्रुप था, उन्होंने तो साफ मना बोल दिया कि हम नहीं करेंगे, हम ये कार्ट्रिज और ये जो राइफल है इसको हम टच नहीं करेंगे. एंड वी विल नॉट, उन्होंने साफ रिफ्यूज ही कर दिया, मना ही कर दिया इसको यूज करने के लिए. एज अ रिजल्ट The entire battalion was disbanded, रिमूव कर दिया गया. गुस्सा आ गया उनको, ब्रिटिशर्स को, कि भाई इनकी इतनी हिम्मत, हमारे सामने जबान लड़ा रहे कि हम नहीं यूज करेंगे. तो तुरंत उन बैटालियंस को डिसबैंडेड कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया आर्मी और सोल्जर्स की जगह से. यस, सो दीज वर द मेन रीजंस वी हैव लर्न व्हाई द आउटब्रेक ऑफ 1857 revolt occurred. Yes. Now next class we will learn about the planning of the revolt and Mangal Pandey. Okay, thank you.